Now, in a dramatic turn within the Lalu Yadav family, RJD chief's daughter Rohini Acharya has announced that she is quitting politics. So, she's not just quitting politics, she's also saying that she's disowning her family, distancing herself from the family. Tejaswi's uncle goes all out. A reaction coming in from Rabri Devi's brother, who has slammed Tejaswi Yadav. Mama Subhash backs Rohini Acharya and slams Tejaswi. All right, we have Saket getting us more details on that. परिवार वाले एक एक करके अब इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. अभी फिलहाल मामा सुभाष अपनी भतीजी रोहिणी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. तेजस्वी यादव से ये भी कह रहे हैं कि तुम घर से निकालने वाले कौन हो. देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी जब तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से निकाला गया था तो दोनों मामा, चाहे सुभाष यादव हो या साधु यादव, दोनों ने मोर्चा संभाला था और आरोप संजय यादव पर ही उन्होंने उस वक्त भी लगाया था. और एक बार फिर रोहिणी आचार्य के इस पूरे मामले पर संजय यादव को कटघरे में ये खड़ा कर रहे हैं रमीज संजय यादव और उनकी पूरी टीम, जो इस पूरे चुनाव के दौरान, या यूं कहे कि पहले से ही लोकसभा चुनाव में भी ये तमाम लोग तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहे, तो इन लोगों पर निशाना साध रहे हैं. अब देखना होगा एक्शन इस पर क्या होता है, क्योंकि पार्टी और परिवार के अंदर रिएक्शन तो है संजय को लेकर या फिर रमीज को लेकर. अब उनके घर के अंदर भी जिस तरह से उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोला है, तो अब इस पर तेजस्वी यादव का क्या पक्ष होता है, क्योंकि अब तक लालू परिवार से कोई भी शख्स, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है, जबकि सब पटना में है, मीसा भारती भी पटना में है, लेकिन इन लोगों के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है. तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी, आखिर इस पर परिवार का क्या पक्ष है जिस तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं. देखना होगा. जी. All right, Saket, thank you for getting us the details. बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए. But who are these people that Rohini Acharya is naming? Who exactly are Ramiz and Sanjay Yadav, the mysterious men at the center of Lalu Yadav family turmoil? Let's tell you all about them. Let's first talk about Ramiz. Ramiz hails from Balrampur district in Uttar Pradesh and has a background in cricket. He has played 30 first-class matches for Jharkhand. He became friends with Tejaswi Yadav on the cricket field itself. His family wields political influence. His father-in-law even served as a Samajwadi Party MP from Meerut. But Ramiz's record is controversial, with several criminal cases against him, including murder and accusations of violence and arson during the 2021 Panchayat polls. Sanjay Yadav, on the other hand, met Tejaswi during his IPL days and is considered a trusted aide and senior political advisor to him. Sanjay joined RJD in 2012 and was sent to Rajya Sabha in 2024, where he currently serves as a member. He has also been closely associated with Akhilesh Yadav and was summoned by the CBI in a high-profile land scam case. These two men, now at the center of the family allegations, have suddenly become key figures in the ongoing drama surrounding Rohini Acharya's revelations. Amid the controversy, the family controversy, old remarks by Tej Pratap Yadav have resurfaced, highlighting his strong support for his sister Rohini. On the 20th of September, Tej Pratap Yadav had hailed Rohini for supporting the family, calling her contribution commendable. In a stark warning, he said he would use the Sudarshan Chakra on villains and caution, don't ever think of insulting my sister. हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा. और जिस तरह की बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है. अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है. एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती. ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा. जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से हमारी बहन का. Congress leader Udit Raj has sparked controversy. When asked about the allegations, he reportedly said, "Hota rehta hai," implying that such incidents are common. To Rohini, he added, "Go file a complaint." Now, these comments expose the real ladki who mindset within the Congress. Listen in. What happened, it happens. In a big family, it happens. It happened in Mulayam Singh family also. But what happened? Finally, it was all settled. So, only thing that because if it happens to Dalit and OBC, it is highlighted. And when it happens to so-called upper caste, the media will not ask the question. Find fault with the OBC and Dalits.
and highlight and glorify always upper caste. This upper caste media, I say it, this upper caste media, they are already empowered, well-to-do. They are not dying of food and shelters. They are well-to-do. Meanwhile, the political drama in Bihar has now drawn sharp reactions from the Bharatiya Janata Party, taking a jibe at RJD. Party leaders mocked Lalu Prasad Yadav's family feud, saying they want to run Bihar but can't even manage their own family. The BJP added that Rohini Acharya's statement reflects the jungle raj of the RJD, highlighting what they call party's mentality and entrenched nepotism. Leaders also pointed out that the family fight appears to be only about power. परिवारवादी लोग हैं, राजनीति को अपना जागीर समझते हैं, इसलिए इनकी परेशानी स्वाभाविक है। देखिए, राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है, और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते। पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। देखिए, बड़ा दुखद है कि जिस बेटी ने किडनी दी और जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने पिता की रक्षा की, आज उसको अपमानित होकर जाना पड़ रहा है। जो हमने स्टेटमेंट देखा है, जिस तरह दुखी मन से राजद और परिवार को छोड़ा है, और ये भी कहा कि चप्पल फेंका गया या पिटवाने की बात की गई। संजय यादव पूरे बिहार के लिए और पूरे लालू परिवार के लिए एक विलेन इमेज लेकर आए। तेज प्रताप यादव उनके खिलाफ बोलते हैं, अब रोहिणी आचार्य बोल रही हैं। भाई ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों छोड़ा, क्या कारण है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद सबका घर में आग लग गई है। उन्होंने आरोप लगाया, संजय यादव पर आरोप लगाया। अब क्या आरोप है, मैं इन आरोपों को वो अपना सघन जांच करिए। अभी तो जो ये लोग कह रहे थे ना, अरे जाकी रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त देखा ही तीन तैसी। ये पाप का घड़ा फूटता है तो पूरा समुद्र तक जाता है। नहीं, देखिए, वैसे तो ये उनके परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन अगर आप राजनीति में हैं, आप सामाजिक जीवन में हैं, तो नथिंग इज प्राइवेट, एवरीथिंग इज पब्लिक। और जिस प्रकार से पॉलिटिकल प्रश्न उठाया जा रहा है, तेज प्रताप यादव, उसके बाद अब रोहिणी आचार्य, कम से कम हार की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि लालू जी का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। लालू जी तथाकथित रूप से सामाजिक रूप से वंचित लोगों का प्रतिनिधित्व करने का उन्होंने दावा किया है, लेकिन कल के चुनाव के नतीजों के बाद जिस प्रकार से उनके ऊपर अस्तित्ववादी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आत्ममंथन करने की आवश्यकता है उनकी पार्टी को। उनके परिवार का विषय है कि परिवार में जिस तरह से वो जिम्मेदारी ले रही है, और आगे की जिम्मेदारी अगर उनकी बहन को कहा जाए तो किस पीड़ा से उसने जिम्मेदारी ली, तो इसलिए राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रही है, यहाँ तक कि परिवार से। तो अब इस परिवार में वो अपनी हार भी नहीं स्वीकार कर रहे, उनको ये भी नहीं फर्क पड़ रहा कि हमारी। So while the BJP has openly mocked Lalu family feud, its ally Chirag Paswan said he will not make any comments.
explaining that he understands the mental and emotional strain when a family goes through such a difficult situation. Recalling his own experiences, he added that despite political differences, he has always considered Lalu's family as his own. कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। Amid the political storm over Rohini Acharya's revelations, the RJD has sought to downplay the feud. Party spokesperson Mrityunjay Tiwari called it a family matter and said that the High Command will react. Congress is also saying that Tejashwi and Lalu should come clear with the truth. नहीं, देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी, किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। कि जो बेटी पिता के जीवन के लिए किडनी दान कर सकती है, वो पिता से कभी अलग नहीं हो सकती है। इसलिए सवाल ही नहीं उठता है कि रोहिणी आचार्य अपने पिता से कभी अलग होगी। लेकिन ये तेजस्वी यादव जी और जो उनके परिवार के मुखिया हैं आदरणीय लालू यादव जी, इस आरोपों में क्या दम है उसके बारे में वो स्वयं महसूस करेंगे और स्वयं उसका समाधान ढूंढ करेंगे। इसलिए कि परिवार के अंदर हम लोगों को झांकने का अधिकार नहीं है।